This is the random question which is being asked here. Now he is asking, who was the 16th Chief Justice of India? Who was the 16th Chief Justice of India? क्या can you kita can you remember the serial number? Why only 16th? This question can be done by intelligent guessing only. मेमोरी तो इतनी शार्प रहती नहीं कि ना किसी को याद रहता. तो कैन यू गेस क्यों he is particularly asking 16th? और चार ऑप्शंस कौन से ऑप्शंस दिया देखिए. what are the options given? Justice यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, जस्टिस कोका सुब्बाराव, जस्टिस पीएन भागवती, जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़. अब उसमें सबसे क्या बोलते हैं, सबसे मोस्ट प्रेफरेंशियल नेम क्या है? मोस्ट कॉमन, क्या बोले मोस्ट, सर? इसमें चार ऑप्शंस में से मोस्ट फेमस चीफ जस्टिस कौन से है, which we have in the course of 30 days, 40 days? Justice P.N. Bhagwati. Why he was famous? भागवती, फादर ऑफ पीआईएल. Father of PIL. So, लेकिन अपना आंसर क्या है? Justice Yashwant Vishnu Chandrachud. जस्टिस यशवंत विष्णु चंद्रचूड़. No. Are you able to see the screen here? Yes, sir. Who is the first Chief Justice of India? Haridal J.K. Sundas Kanya. और H.J. Kania. Now, 16th is Yashwant Vishnu Chandrachud. यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, YV चंद्रचूड़. समझ आ रहा? नाउ ही वॉज फेमस फॉर गिविंग habeas corpus judgment. What was habeas corpus judgment? हेबियस कॉर्पस जजमेंट क्या था? हेबियस कॉर्पस केस क्या था? याद है कल पढ़े थे? नहीं जी. yesterday we did it. It is known as ADM Jabalpur case. उसमें क्या हुआ था? Even Article 20 and 21 will be suspended during the national emergency. So this was very infamous judgment when the CGI was YV Chandrachud. ठीक है? That is one thing, and you can also say that his son also became the Chief Justice of India. th Chief Justice of India. Dhananjay Yashwant Chandrachud. Dhananjay Yashwant Chandrachud. So when D.Y. Chandrachud became the Chief Justice of India, question came on his father. You can relate it. It is the current affairs news. It is the current affairs news where both son and father
became CGI of CGI. First was YV Chandrachud and the son was DY Chandrachud. And one more important thing, YV Chandrachud is important because he was the CGI during the Jabalpur case, ADM Jabalpur case. ठीक है, समझ में आया? So it is very clear that ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था. And what are the other options? दूसरे ऑप्शंस क्या है? Justice is Koka Subbarao. Koka Subbarao, K. Subbarao. Just Why K. Subbarao is important? Because he belongs to Telangana, Telugu region. Justice K. Subbarao belongs to Telangana region. P.N. Bhagwati is important for Father of PIL. father of PIL. And Justice Dhananjay Yashwant Chandrachud is important for 50th who is Chief the Justice of India. 50th? And who is son of whom? Dhananjay Yashwant Chandrachud is son of Yashwant Vishnu Chandrachud. So this the current affairs से connect करके उन्हें क्वेश्चंस बना के देता हूँ मैं आपको. ठीक है, क्लियर है पॉइंट? एंड व्हाट इज द सीरियल नंबर ऑफ P.N. Bhagwati? सेवेंटींथ. प्रफुल्ला चंद्रा नटवरलाल भागवती, P.N. भागवती का मतलब. ठीक है. एंड और कौन है? के who was the chief justice? ठीक है, क्लियर है पॉइंट? Koka Subbarao is on 9th number. Done. And he was the first chief justice of India who resigned. Why K. Subbarao is important? Because he resigned. So हर एक की एक स्पेशलिटी है. क्लियर है पॉइंट? So who was the 16th chief justice of India? Justice Chandrachud. Yashwant Vishnu Chandrachud. और current कौन? Who is the current chief justice of India? Suryakant. What is the serial number of Suryakant? 56? 53. 53. 53. 53. ठीक है, क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. ओके, डन. सो इतना कुछ याद रखना पड़ता है आपको सॉल्व करने के वास्ते. तो जो हाइलाइटेड है वही याद रखना है या पूरे इतने जितने हैं वो पूरे याद रखना? जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखना. आप इट इज इम्पॉसिबल टू रिमेम्बर एवरीथिंग. कि भाई ना कुछ कामा करे सो है, इसलिए दे बिकेम फेमस. सो ये कुछ ना कुछ ना करे सो है, इसलिए क्या है, इन लोगों का क्वेश्चन आ गया. ठीक है, फर्स्ट और करंट याद रखना, और बीच में जो फेमस लोग आए ना वो याद रख लेना बस. और फेमस कैसा इंपॉर्टेंट है बोला था, प्रीवियस क्वेश्चन करना. इस पे से ही घुमा के क्वेश्चन देता हूँ. ठीक है, क्लियर है पॉइंट? जी सर. Yes. नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? Full form of UPOV is UPOV. इंटरनेशनल यूनियन फॉर
Protection of new variety of plants. This is also current affairs question. How many of you are going through the Hindu newspaper? आज पढ़े? जी सर, थोड़ा बहुत पढ़े सर फजर में। क्या है? हेडिंग्स पढ़ना है बस। वो हेडिंग्स पढ़ना है आपको, इससे ज्यादा कुछ भी करना नहीं है, याद रखिए। डायरेक्टली हेडिंग से ही क्वेश्चन आते। अंदर आप यूपीएससी बोले तो बहुत डीप में जाना, ये तो सिर्फ हेडिंग्स काफी है ये एग्जाम्स के वास्ते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज नॉट ए ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क एक्ट कब आया? व्हाट इज द ईयर ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट? क्वेश्चन आता है आपको, ट्रेडमार्क एक्ट आया कब? 1999. 1999। 1999। ट्रेडमार्क का मतलब है 1999। आपके बिजनेस का सिंबल, दैट इज योर ट्रेडमार्क। आपकी खासियत क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ठीक है, सो विच इज नॉट ए ट्रेडमार्क? नाइक सर, नाइक। नाइकी। नाइक इज इट इज अ नाइकी। नाइकी। Why, सो sir? नॉट ए ट्रेड, सॉरी, नाइकी इज ए ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क किसको बोल रहे हैं? सर, जिसके ऊपर नाइकी का ट्रेडमार्क सिंबल क्या है। है? कंप्यूटर नहीं है। गूगल हाँ नाइकी का सर, गूगल। राइट है गूगल, सर। sir. कंप्यूटर सर, कंप्यूटर। कंप्यूटर। एप्लीकेशन ऑफ माइंड। नाइकी क्या है? ट्रेडमार्क है। इसका सिंबल यस क्या सर। है? राइट। गूगल क्या है? राइट। ट्रेडमार्क है। जी सर। यस। कोका कोला क्या है? कोका कोला भी ट्रेडमार्क है ट्रेडमार्क सर, है। इसका भी। बट कंप्यूटर इज ए, नॉट दैट, नॉट ए ट्रेडमार्क। देखो ट्रेडमार्क किसकी रहती है बोलो आप? ट्रेडमार्क रहता किसका? ब्रांड रहता कोई भी कंपनी का, या फिर सिंबल रहता। ब्रांड है। ट्रेडमार्क इज नथिंग बट ए ब्रांड। इज नाइकी ए ब्रांड? यस। यस सर। इज गूगल इज ए ब्रांड? यस। यस। कोका कोला इज ए ब्रांड? यस। कंप्यूटर क्या ब्रांड है? नो सर, देयर इज नो ब्रांड। No, but बट सम different brands कंप्यूटर of सेम। computer will be there. क्या बोले? Different brands of computer will be there, no? कंप्यूटर के वर्जन्स हैं, बट उसमें ब्रांड नहीं है ना। सो कंप्यूटर Okay, okay. एक, अगर आप थोड़ा बैक टू आवर स्कूल डेज, व्हाट इज अ कंप्यूटर बोले तो क्या बोलते थे? कंप्यूटर इज अ डिवाइस। बट्टी मारे थे। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोल के बताते थे। बट व्हाट इज ए जी कंप्यूटर, सर। फुल फॉर्म क्या है उसका? थोड़ा सा थॉमस। ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लिए थे, किसी को मालूम है? पता नहीं sir. मालूम है सर, बट याद नहीं है वो। ओपोनेंट ऑफ मैनिपुलेटिव। कुछ दिमाग पे जोर डाले तो याद आता है क्या? कभी सुने ही नहीं? सुने थे सर, नहीं सुने थे। सुने sir. commonly operated machine particularly used for technology entertainment and research। सो कंप्यूटर इज अ मशीन विच इज यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। ठीक है, सो विच इज नॉट ए ट्रेडमार्क। तो कंप्यूटर इज नॉट ए ट्रेडमार्क, कंप्यूटर इज अ मशीन, इट्स नॉट ए ट्रेडमार्क, कोई कंपनी नहीं है वो। समझ में आ गया? Okay. Yes sir. नेक्स्ट क्वेश्चन।
concept of independent judiciary under the Indian Constitution was borrowed from the Constitution of Dash. So independent judiciary कहाँ से लिए? You have taken यूएसए from से सर, USA. USA. ठीक है. So we have, आप लोग का नोट्स पढ़ रहे हैं? मैं नोट्स भेजा है सो आप लोगों को. ओपन करें बुक को? नहीं करें? अभी भी वही वही है, रेड कलर में पैक्ड है अभी भी. उसमें सोर्सेस सर ऑफ वो इंडियन नोट से कॉन्स्टिट्यूशन. ज्यादा आप जो डेली दिखा रहे हैं इससे ज्यादा क्लियर समझ में आ रहा तो यही पढ़ ले रहे हैं. ये तो आपको सपोर्टिंग मटेरियल है, वो तो आपका सब्सटेंस है ना, वो तो आपका बेस है. फ्रॉम फ्रॉम मार्च 23 स्टार्ट दैट नोट्स इटसेल्फ. जब आप वो नोट्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे आपको नया नहीं दिखना. ओके. what we are doing now is a tip of the iceberg. What will start from March 23 will be the iceberg itself. वो पूरा पहाड़ है. अपन जो पढ़ रहे खाली टिप है उसका. पढ़ लेते सर इतना सब एग्जाम से पहले हो जाते पास. पास तो छोड़ो, आपको आप टॉप करते. इंशाल्लाह. सर आपके क्लासेस इवन हम तो कभी खोल के भी नहीं देखे, बट आपके क्लासेस से ही बहुत सारी चीजें याद हो जा रही, जैसे यूएसए से. ऐसे अभी जो हम बोल रहे हैं, हम तो कभी किताब खोल के भी नहीं देखे, लेकिन आपकी क्लासेस से याद हो जा रहा. रिवाइज करना जरूरी है. और मेरे क्लास को क्या है मालूम, आपके नोट्स से तड़का मारो. दाल बना रहे आप, तड़का मारना आपका काम है. सो इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहाँ से लिया अपन? यूएसए. कुछ बोल रहे? आयशा सिद्दीका नो कुछ बोल सर. रहे क्या आप? नो सर. सो ये कहाँ, कौन सी चीज कहाँ से लिया, आई टेल यू इन द मटेरियल इटसेल्फ. ठीक है, अब अपने को ये कंप्लीट करना है. लोक अदालत कैनॉट डिसाइड डैश केसेस. क्या डिसाइड नहीं कर सकते? नॉन कंपाउंडेबल केसेस आई थिंक. नॉन कंपाउंडेबल केसेस. व्हाट आर कंपाउंडेबल केसेस? नॉर्मल जो ज्यादा खतरनाक नहीं रहते, मर्डर एंड ऑल. नहीं नहीं नहीं, वो नॉन कॉग्निजेबल केसेस की बात कर रहा हूँ मैं, नॉन कंपाउंडेबल केसेस की बात कर रहा हूँ. ये क्लैरिटी आना आप. लोक ये अदालत, फैमिली डिस्प्यूट. कैनॉट डिसाइड बोल रहा हूँ मैं. कंपाउंडेबल केसेस लास्ट टाइम पढ़ाया था. व्हाट इज कंपाउंडेबल केसेस? इसमें से फैमिली केसेस आते हैं सर, नहीं नहीं छोटे नहीं छोटे केसेस नहीं आई थिंक. नहीं. कंपाउंडेबल केसेस क्या है वो बोलेंगे. लेस इम्पोर्टेंट केसेस. लेस इम्पोर्टेंट केसेस. Legal नहीं. settlements between the parties. लीगल सेटलमेंट. कंपाउंडेबल केसेस आर दोज केसेस वेयर लीगल सेटलमेंट इज पॉसिबल बिटवीन द पार्टीज. लोक अदालत क्या है? सेटलमेंट का है ना. यस. फैमिली डिस्प्यूट सेटल हो सकते हैं, यस. सिविल केसेस सेटल हो सकते हैं. बट नॉन कंपाउंडेबल केसेस माने देयर इज नो चांस ऑफ लीगल सेटलमेंट. दोज केसेस आर कॉल्ड एज नॉन कंपाउंडेबल केसेस. नॉन कंपाउंडेबल केसेस. समझ में आ रहा? तो क्या है? लोक अदालत कैनॉट डिसाइड ऑन विच केसेस? नॉन कंपाउंडेबल केसेस. नॉन कंपाउंडेबल केसेस. और कहाँ है? विच सेक्शन टॉक्स अबाउट नॉन कंपाउंडेबल केसेस? पेज में पलटाओ. CRPC 320 320 BNS 359. 320 CRPC and 359 BNSS.
मैंने आपको सर तारीफ की नहीं? कंपाउंडेबल और इस सेक्शन में कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल दोनों आते हैं। सिर्फ कंपाउंडेबल का दिया हुआ है, नो जो चीज जो नहीं है वो नॉन कंपाउंडेबल है। सर, ये टॉपिक वाइज नोट्स कैसा बनाना है सर? हाँ तो आप किसमें से, इसमें से बोल रहे हैं आप? हाँ, ये जो आप डेली लिखा रहे हैं ना क्वेश्चन आंसर्स, हम लोग जो नोट्स बना रहे हैं, इससे टॉपिक वाइज कैसा बनाना अच्छे से, मतलब क्लियरिफिकेशन और याद रखने के लिए। तो आप उसको क्या करो, टेक मार्कर्स। जी। अब एक बार लिखे बाद में फिर से तो जी। बनाना बहुत मुश्किल हो जाता। व्हाट यू डू, कलर कोड कर लो आप। मैं 2 नोट्स बना रही हूँ, डेली रफ नोट्स, फिर एक प्रॉपर क्लियर नोट्स डेली रफ रिकॉर्ड की नोट्स है, तरह। रिकॉर्ड की तरह। पहले आप क्या करो कि आप कितने, अब आपको इफ आई से क्या टाइप्स ऑफ केसेस आ गए आपको बोलो, टाइप ऑफ क्वेश्चंस कौन से हैं। अभी अभी 3 साल के पेपर करे आप लोग ऑलमोस्ट। सो कौन से मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ जी। केसेस है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है, अब आप लोग एनालिसिस करके बोलो ना। पार्लियामेंट से रिलेटेड। वन इज केस लॉ, आर्टिकल्स ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें के केसेस लॉ आर्टिकल, है, आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स है सर, लीगल मैगजीन्स है, और शेड्यूल। शेड्यूल्स है सर। शेड्यूल्स है, शेड्यूल ऑल्सो देना। Amendments. शेड्यूल्स है। सर आपके नोट्स में है सर पूरा अलग अलग, जैसा उन्होंने बोल रहे ना। मेरा मैं नोट जो दिया, इसी वही बना के दिया। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल सब मॉड्यूल 1, सब मॉड्यूल हाँ 2, सब सर। मॉड्यूल 3, सब मॉड्यूल 4। तो सर नोट्स बनाने की फिर जरूरत नहीं होगी ना सर, आपके नोट्स तो इनफ होंगे ना। वो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें छोटे, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से ही आप अपने आप को कैसा एक जगह वो कर ले रहे हैं। द बेस्ट थिंग इज डोंट डू रिपीटेशन वर्क। आप जब नोट्स बना रहे ना, आप क्या करो, हाइलाइटर ले लो। अगर आप जी। येलो है, टेक इट एज अमेंडमेंट्स। ऑरेंज है, टेक इट एज मैगजीन्स। ब्लू है, टेक इट एज अमेंडमेंट्स। कलर कोडेड कर लो उसको। ओके। अब जब कलर कोड ओके। कर लेते आप, तो द मोमेंट यू कंप्लीट अप ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 3 साल के कंप्लीट कर लिए समझो। जब आप पेज हम पलटाते रहे तो आपको खुद समझ में आता कि हाँ भाई ये चीज ये है बोले। जी। देन इफ यू हैव टाइम देन यू कैन मेक इट एज वन वन पेज। वो आपको जरूरत नहीं हो करने की, बिकॉज मैं मटेरियल आपको उसी मैनर में दिया आपको। जी ओके सर। सर, में टिक कर ले रहे हैं। क्या बोले, यू आर आपके टिकिंग इन। मटेरियल्स में टिक कर ले रहे सर, हम जो डेली के से अमेंडमेंट चलो, मटेरियल में, फिर साइड में डेली नोट्स तो लिख रहे, जो अलग अलग है सर वो उसमें टिक कर ले रहे थे। दैट इज वेल एंड गुड। वैसा कर लेता आपका टाइम बच जाता। मतलब हर एक का अलग अलग मेथड है पढ़ने का। सो आई कैन जस्ट गिव एडवाइस। ठीक है, लेकिन रिवाइज करना है। रिवाइज करे तो ही होता, नहीं तो नहीं होता। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट। ओके सर। डैश द मिनिमम ऑफ अनलॉफुल असेंबली। कितने रहेगा अनलॉफुल असेंबली के लिए? वही और मोर। अनलॉफुल असेंबली के लिए 5 और मोर, याद रख लीजिए। डेकॉइटी के लिए भी 5 और। ऐसा ऑफेंस जो नंबर ऑफ पर्सन पे डिपेंड है, डेकॉइटी एंड अनलॉफुल असेंबली। इसमें कितने लोग होना, 5 और मोर। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन होता है डेकॉइटी के लिए कितने होना मिनिमम लोग।
5 or more. और अनलॉफुल असेंबली के लिए भी 5 और मोर। 5 or more. अब ये बी आईपीसी निकाल देगा ना, बीएनएस देता, बीएनएस में भी सेम है 5 और मोर। ठीक है, उन्हें अगर बीएनएस पे दिया है आईपीसी पे दिया तो उन्हें सेम रखा हुआ है। हाउ मच वी रिक्वायर टू मेक एन अनलॉफुल असेंबली? 5 or more. 5 और मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज रीड द क्वेश्चन। Which Which article of the article Indian of the Indian Constitution Constitution speaks about the participation of workers in the management management of undertaking? पब्लिक अंडरटेकिंग। व्हाट आर द ऑप्शंस? क्या क्या दिया था उन्हें? क्या है क्वेश्चन? 43A amendment. Participation of workers in management of industries. 43 है आर्टिकल। तो 4 ऑप्शंस दिया हुआ है उन्हें, 42, 43, 43 कैपिटल ए एंड 44। सो क्वेश्चन क्या है? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ अंडरटेकिंग्स। सो कौन सा आंसर है अपना? 43A. 43 कैपिटल ए, 43 कैपिटल ए। व्हाट इज 42? Provision for just and humane conditions of work and maternity relief. मैटरनिटी रिलीफ। व्हाट इज 43? Participation of workers in management of industries. 43 Living wages Okay. for Living. workers. लिविंग वेज माने जिंदा रहने के लिए जो तनख्वाह मिलती है ना उसको क्या बोलते हैं? लिविंग living वेज। wage. तो व्हाट इज 44? Uniform Civil Uniform Code for Civil the Code. citizens. यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? Yes. So what is the correct answer? 43 capital 43A. A. What is 42? Provision for maternity relief. 43, Provision for just human. 44, 44 Uniform Civil Code. 43 क्या है? Living wage. Etc. for workers. 43 is living wage. 43 capital A is participation. 42 is what is 42? Maternity relief. Maternity relief. Maternity 44, relief. 44 Uniform Civil Code. यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएसआर किसको बोलते हैं? Corporate social responsibility. तो व्हाट इज सीएसआर? सीएसआर का फुल फॉर्म क्या है? Corporate social Corporate responsibility. Responsibility. Corporate social responsibility, that is nothing but CSR. ठीक है, और ये कहाँ है? सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। Companies Act. CSR is nothing but under Companies section Act 2013. 135. 135 of the Companies Act
2013, ठीक है। 2003. डन। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, 102. Who among the following is competent to prescribe conditions for the acquisition of citizenship? माने सिटीजनशिप किसी को देना है, एक्विजिशन माने टू टेक द सिटीजनशिप। सो कौन है सही अथॉरिटी जो एक्विजिशन के रूल्स बनाना, कौन है सबसे अथॉरिटी कौन बनाते? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, ठीक है। सो हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू मेक एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। कौन से आर्टिकल में है पार्लियामेंट? पार्लियामेंट कौन से आर्टिकल में पार्लियामेंट? Article 79. 79। आर्टिकल नंबर 79। व्हाट इज सेकंड ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन क्या था? President. प्रेसिडेंट का आर्टिकल क्या है? Article 52. आर्टिकल नंबर 52।